Hello everyone, today we are going to start the poem Dad and the Cat and the Tree, which is written by Kit Wright, right? This entire poem is about a cat which got stuck in a tree, and the father of the poet is trying his best to get that cat out from the tree, right? So let's start the poem. This morning, a cat got stuck in our tree. Dad said, right, just leave it to me. So here, the poet discusses that one morning a cat got stuck in a tree. So his father told him that he will manage to get it out from the tree, right? एक मॉर्निंग में क्या हुआ कि एक जो बिल्ली है जो है कैट जो है स्टक हो जाती है एक ट्री में फंस जाती है, राइट? तो उसके पोइट के डैड क्या कहते हैं, पोइट के पापा क्या कहते हैं कि जस्ट लीव इट टू मी, मतलब ये मेरे पे छोड़ दो, मैं मैनेज कर लूंगा, राइट? किसको कैसे उतारना है, राइट? द ट्री वॉज वॉबली, द ट्री वॉज टॉल, मम सेड फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल. वॉबली मीन्स अनस्टेबल, मतलब नॉट फॉर्म, मतलब जो इतना स्ट्रांग नहीं है. ट्री जो है वॉबली नहीं था, मतलब इतना स्ट्रांग नहीं था, अनस्टेबल था, वो कभी भी टूट सकता था, राइट? ऐसा था, कमजोर कहने का मतलब है, ठीक है? द ट्री वॉज वॉबली, द ट्री वॉज टॉल, मम सेड फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल. फॉर गुडनेस सेक मीन्स भगवान के लिए, राइट? बोलते हैं ना, फॉर गुडनेस सेक डोंट डू दिस, या भगवान के लिए ऐसा मत करिए, है ना? सो since the tree was unstable, right, the poet's mother was full of doubts as to how easy would it be for her husband to climb the tree. Therefore she warned him that he might fall from the tree, right? तो अब उस जो अनस्टेबल है, वॉबली है ट्री, तो अब पोइट की मदर को क्या लगता है कि कहीं ये गिर ना जाए. जो उसके फादर है पोइट के, अगर वो पेड़ पे चढ़ेंगे, टॉल भी है, तो कहीं वो गिर ना जाए, तो इसलिए वो उनको वार्न करती है, राइट, कि कहीं आप गिर ना जाए. Fall, scoffed Dad. A climber like me? Child's play this is. You wait and see. Scoff means laughed mockingly, मतलब स्कॉफ मीन्स जब हमें कुछ कोई बता रहा है तो हम मजाक में हंस देते हैं, अरे यार तुम भी क्या बात करते हो, ऐसा कुछ, है ना? तो वैसे ही वो भी अपने वाइफ को, जब उसकी वाइफ वार्न करती है, तो वो भी स्कॉफ करते हैं, बोलते हैं, मतलब मजाक बनाते हैं कि ये तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो, राइट? सो लिसनिंग टू his wife warnings, the father of the poet was quite surprised, right? He just ignored these warnings by saying that he was a good climber and climbing the tree was as easy as a child play. वो बोलते हैं कि ये तो एक बच्चों का खेल है, राइट? बच्चों का काम है, ये तो मैं इजीली कर दूंगा, राइट? He got out the ladder from the garden shade. He slipped his landed in the flower bed. तो अब उसने क्या किया? What he did? Now father of the poet brings out a ladder from the garden shade. But what happened? It slipped and father fall on the ground. Now अब क्या हुआ कि उनके वो पोइट के फादर ने लेडर लेके आए. लेडर में सीढ़ियां होती है ऐसी जो वुड की बनी होती है, तो गार्डन से लेके आए और फिर उस पे चढ़ने की ट्राई किया वो ट्री पे, बट वो जो लेडर है स्लिप हो गया, तो ही लैंडेड इन दी फ्लावर बेड, मतलब वहां पे गार्डन में जो है वो गिर गए, राइट? Never mind, said Dad, brushing the dirt off his hair and his face and his trousers and his shirt. तो अब डैड बोलते हैं नेवर माइंड, कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है, राइट? सो ही ब्रशेस ऑफ द dirt from his hair
and clothes, cleans his face and begins to think about another plan to drive away the cat. अब उन्होंने दूसरा प्लान सोचना स्टार्ट कर दिया कि कैसे हम कैट को नीचे उतार सकते हैं, राइट. We'll try plan B. Stand out of the way. Mom said don't fall again, okay? तो अब क्या होता है? Now the father of the poet, right, decided to try plan B. But his wife, however, again warns him that he might fall again. अब उनकी वाइफ जो है वापस से वो बोलती है कि कहीं वापस आप गिर ना जाए, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है. Fall again, said Dad. Funny joke. Then he swung himself up on a branch. It broke. Then he again ignored his wife's warning and still laughing. Right? मतलब जब उसकी वाइफ जो अगेन उनको वार्न करती है तो वो फिर हंसते हैं कि what a funny joke, right? Then he swung himself on a branch, right? But the branch broke and again fell on the ground. Again he fell on the ground, right? मतलब अब जब वापस वो चढ़ते हैं सॉन्ग में कूद के, जो जैसे छलांग लगा के चढ़ना, राइट, छलांग लगा के चढ़ते हैं ब्रांच पे, तो क्या होता है, इट ब्रोक, मतलब ब्रांच जो है टूट जाता है. तो अगेन ही फेल ऑन द ग्राउंड, राइट. डैड लैंडेड वेलोप back on the deck. Mom said, stop it, you will break your neck. So when he again fell on the ground, and now the mother of the poet begged him to stop, as he might break his neck from falling again and again, है ना. अब उसकी माँ जो है वो मतलब वरीड हो जाती है कि कहीं मतलब अपना जो उनके नेक जो है कहीं नेक ना ब्रेक कर ले, वो अपना बार बार अगर ऐसे गिरते रहेंगे तो नेक उनका ब्रेक हो सकता है, इसलिए वो वरीड होती है, राइट. लैंडेड वेलोप मीन्स हैवीली, मतलब लैंडेड वेलोप मतलब धड़ाम से बहुत तेजी से गिरे वो, राइट. रबिश शेड, नाउ विल ट्राई प्लान सी, इजी एज विंकिंग टू क्लाइंबर लाइक मी. तो अब क्या होता है कि अभी भी जो है उसके फादर हैं वो बोलते हैं रबिश, मतलब क्या बकवास कर रही हो, रबिश मीन्स बकवास करना, क्या बकवास कर रही हो. नाउ वी विल ट्राई प्लान सी, हम जो है प्लान सी ट्राई करेंगे, राइट. एज विंकिंग टू अ क्लाइंबर लाइक मी. सो नाउ द फादर डिसाइडेड टू ट्राई प्लान सी, राइट. He was still confident that being a great climber, he would succeed, right? मतलब वो कहता है कि मतलब कि उसे लगता है कि वो जो है ग्रेट क्लाइंबर है. क्लाइंबर मीन्स क्लाइंब मीन्स चढ़ने वाले, चढ़ना, और जो चढ़ने वाले होंगे उसे क्लाइंबर, मतलब चढ़ने वाले मतलब क्लाइंबर. तो एक ग्रेट क्लाइंबर है वो, तो वो जरूर इस काम में सक्सीड हो जाएगा, राइट. देन ही क्लाइंब्ड अप हाई on the garden wall. Guess what? He didn't fall. So now what happened? When he climbed up high on the garden wall, and this time he did not fall, right? अब वो क्या करते हैं उसके फादर, पॉइंट के फादर, कि गार्डन वॉल पे चढ़ जाते हैं, है ना, हाई गार्डन वॉल पे. अब जो है और इस टाइम वो गिरते नहीं है. He gave a great leap and he landed flat in the crook of the tree trunk right on the cat. Great leap means एक लंबी छलांग लगाना, right? He gave a great leap, है ना. A crook of the tree trunk means, crook means we can see in this picture like this part of the tree, right? Like trees like this, है ना. तो जो ये वाला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं, like here we can see that this part of the tree is called crook, right? तो
अब क्या होता है कि नाउ when the father of the poet climbed up the garden wall, this time he did not fall. मतलब निधट पड़ा, तो है ना, तो with a great leap he finally landed on the tree top, right, on the cat. अब उन्होंने क्या किया कि वो कूदे, ग्रेट लीप, लंबी छलांग लगाई और ट्री ट्रंक के क्रूक के पास जहां कैट थी वहीं कूद के चढ़ गए, राइट. द कैट गेव अ येल एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड, प्लीज्ड एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड. येल मीन्स स्क्रीम, राइट. स्क्रीम मीन्स चिल्लाना, स्क्रीम है ना. Scream, right? Yell means scream. Scream means चिल्लाना. And sprang to the ground, pleased as punch to be safe and sound. So the moment the father landed on the cat screamed with fear and sprang to the ground. Landing smoothly on the ground, it seemed satisfied with itself, right? Now what happened कि जैसे ही वो उस पेड़ पे कूदे तो जो कैट जो है चिल्ला के तुरंत स्प्रिंग में नीचे कूदना मतलब नीचे कूद जाती है ना, डर के मारे. प्लीज्ड एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड, और मतलब प्लीज एज पंच मतलब खुश होना, हैप्पी, है ना. तो ऐसा लगता है कि वो खुश है, वो हैप्पी है कि वो नीचे सेफली उतर गई, राइट. So it's smiling and smirking, smug as can be, but poor old dad still stuck up the tree. Now what happened? Now the poet described that having safely landed on the ground, the cat was smiling arrogantly. Smirking, है ना. Smirking means स्माइलिंग एरोगेंटली, राइट. स्माइल एरोगेंटली मतलब इस तरह से देखना कि मैं तो बच गई, है ना. स्मग एज कैन बी, स्मग में सेटिस्फाइड होना, तो क्वाइट सेटिस्फाइड, तो वो अब सेटिस्फाइड है कि मैं कितने अच्छे से उतर गई, राइट. इतनी स्मूथली उतर गई, तो इसलिए वो स्माइल करती है एरोगेंटली. But poor old dad still stuck up the tree. But what happened? Cat तो नीचे उतर गई, but still his father got stuck on the tree. अभी भी उनके पिताजी जो हैं, उसके फादर हैं पॉइंट के, वो अभी ट्री में ही फंसे हुए हैं. So I hope you have understood the poem. So let's see the rhyming scheme of the poem, right? The rhyming scheme, how do we check the rhyming scheme? We just see the last word of the every line, right? If it is if the first, like अगर जो वर्ड्स हैं, जो लास्ट के वर्ड्स हैं, अगर मैच कर रहे हैं तो उसको हम अल्फाबेट दे देते हैं, राइट. लाइक गॉट ए, है ना. ट्री, ये डिफरेंट है इस वर्ड से, राइट. डिफरेंट साउंड कर रहा है, तो बी हमें अल्फाबेट दे दिया जस्ट. तो ये भी डिफरेंट है. सी. अब मी, ट्री, मी, सेम साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, राइट. तो इसे भी हम सेम अल्फाबेट दे देंगे. तो ए, बी, सी, बी. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट स्टैंजा. wobbly, a, tall. This word is different. This word has different sound from this, so we'll give it B. Goodness, it is also different. C. Fall, then again tall, fall, मतलब same sound,
तो इसे हमने बी दिया है तो इसे भी हम बी देंगे, राइट। सो द राइमिंग स्कीम वी कैन सी हियर इज ए बी सी बी, राइट। सो द एंटायर poem rhyming scheme is A B C B, right. We can see here also dad A, me B, C B, right. A, me and C is same, so we have given this B, so same word B, right. So A B C B, right. Okay, so let's start the question answers. Who got stuck in the tree? Who got stuck in the tree? A cat. A cat got stuck in the tree. What was wobbly? Wobbly क्या था? जो not firm, not strong, not अनस्टेबल बताया था मीनिंग यहाँ पे। तो ट्री वॉज नॉट वॉबली, राइट। वाई डिड द डैड से राइट जस्ट लीव इट टू मी? तो उसके पॉइंट के फादर ने क्यों कहा कि ये मेरे पे छोड़ दो? क्यों कहा? द डैड सेड दिस बिकॉज ही न्यू हाउ टू क्लाइंब अ ट्री। मतलब उनको पता था कि हाउ टू क्लाइंब अ ट्री मतलब कि पेड़ पे कैसे चढ़ना है, राइट। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द स्टैंजा विच मीन्स द सेम एज ट्रैप्ड। ट्रैप्ड है ना। तो ट्रैप्ड का मीनिंग क्या है? स्टक, फंसना, ट्रैप होना, है ना। What did dad scoff at? मतलब स्कॉफ का मीनिंग बताया था मैंने यहाँ पे, मतलब क्या बताया था? लाफ्ड मोकिंगली, हंसना, किसी को मोक करना। अगर कोई हमें कुछ बोल रहा है तो हम हंसते हैं उस पे कि क्या ही बोल रहे हो तुम, है ना। तो किसका मजाक बनाया उसके पोइट के पापा ने? डैड स्कॉफ्ड एट मदर्स फियर दैट ही कुड फॉल। उसकी मदर जो है डर रही थी कि कहीं वो गिर ना जाए, इस वजह से तो वो उसको वार्न कर दिए, तो वो मजाक बनाता है। वाई डिड डैड फॉल फ्रॉम द लैडर? लैडर से क्यों गिर गए? बिकॉज इट वॉज स्लीपरी, राइट। डैड फेल फ्रॉम द लैडर बिकॉज इट स्लिप, मतलब क्योंकि वो फिसल गई लैडर, इसलिए वो गिर गए। वाई डिड डैड आस्क मदर एंड चाइल्ड टू स्टैंड आउट ऑफ द वे? तो उसके जो फादर हैं उसने क्या, पोइट के फादर उन्होंने क्यों कहा कि दूर खड़े हो जाओ? डैड आस्क मदर एंड चाइल्ड टू स्टैंड आउट ऑफ द वे बिकॉज दे कुड गेट हर्ट, मतलब गेट हर्ट मीन्स कहीं चोट न लग जाए उनको, इसलिए उन्होंने कहा दूर हट जाओ, राइट। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द स्टैंजा विच मीन्स द सेम एज अटेम्प्ट। अटेम्प्ट मीन्स हम प्रयास करते हैं, है ना, ट्राई करते हैं, राइट। तो अटेम्प्ट का मीनिंग क्या हो जाएगा? सेम मीनिंग ट्राई, राइट। What seemed a joke to dad? मतलब डैड को जब उसकी मदर ने बोला कि वो वॉर्न किया अगेन, तो उनको लगता है कि वो क्या जोक कर रही है, क्या मजाक कर रही हैं। तो उनको क्या लगा, किस बात पे उन्होंने ऐसा कहा कि क्यों जोक कर रही हो तुम, है ना। क्या उन्हें ऐसा जोक लगा, है ना। द थॉट ऑफ हिज फॉलिंग अगेन सीम्ड अ जोक टू डैड, है ना। वो बार बार गिरना उनको लग रहा था कि एक जोक है। हाउ डिड डैड ट्राई टू क्लाइंब द ट्री? तो अब डैड ने ट्री को कैसे क्लाइंब करना ट्राई किया? डैड ट्राई टू क्लाइंब द ट्री बाय लिफ्टिंग हिमसेल्फ अप ऑन अ ब्रांच। अब उन्होंने क्या किया एंड में कि एक ब्रांच पे चढ़ गए, है ना। Who said stop it, you will break your neck? किसने कहा कि स्टॉप, अब रुक जाओ, नहीं तो आपका नेक जो है टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। किसने कहा था? मदर ने कहा था, राइट, है ना। मम सेड स्टॉप इट, यू विल ब्रेक योर नेक। मम ने कहा था, उसकी माँ ने कहा था। मदर सेड स्टॉप इट, यू विल ब्रेक योर नेक। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द स्टैंजा विच मीन्स द सेम हैवीली। मैंने बताया था
कि वेलोप का मीनिंग बहुत तेजी से होता है, तो जो बहुत तेजी से धड़ाम से गिर जाते हैं, तो वेलोप का मीनिंग हैवीली है ना। तो वेलोप हैवी मीनिंग, सेम मीनिंग ऑफ हैवीली मीन्स वेलोप, राइट। हु वांटेड टू ट्राई द प्लान सी, कौन प्लान सी कौन ट्राई करना चाह रहा था? ऑब्वियसली उसके फादर, क्योंकि उसके फादर ही सारे प्लान्स ट्राई कर रहे थे, राइट। डैड वांटेड टू ट्राई द प्लान सी, उसके फादर जो है प्लान सी ट्राई करना चाह रहे थे। वाई डिड डैड क्लाइंब अप द गार्डन वॉल, उसके पिताजी जो है, उसके फादर जो है, पॉइट के फादर, वो गार्डन वॉल पे क्यों चढ़ गए? Dad didn't fall this time. Dad climbed up the garden wall so that he could jump upon the tree from there. है ना, वो इसलिए चढ़ गए ताकि वो जो है पहले वॉल पे चढ़े, फिर उसके बाद जो है ट्री पे जंप करके कूद जाएंगे, राइट। दैट्स व्हाई he climbed up on a high garden wall, right. What was surprising about Dad's thing this attempt, मतलब इस टाइम में क्या सरप्राइजिंग था? जब उन्होंने वॉल पे जंप किया, तो इस टाइम पे क्या सरप्राइजिंग था? ऑब्वियसली he did not fall this time, right. Dad didn't fall this time while climbing up the wall. तो अब इस टाइम पे वो नहीं गिरे। Find the word from the stanza which means the same as nonsense. बोलते हैं ना nonsense, क्या बकवास बात कर रही हो, तो nonsense का मीनिंग भी होता है सेम मीनिंग रबिश। मैंने बताया था कि बोलते हैं रबिश सैड डैड, बोलते हैं क्या बकवास बात कर रही हो तुम, ठीक है। तो रबिश का मीनिंग nonsense, ठीक है। Where did dad leap from? Leap means छलांग लगाना, कूद के, राइट। तो कहाँ से छलांग लगाया उसके पापा ने, है ना। डैड लिफ्ट फ्रॉम द गार्डन वॉल, गार्डन वॉल पे चढ़ गया था, तो गार्डन वॉल से ही छलांग लगाया उसने। वाई वॉज द कैट प्लीज्ड, तो नाउ मतलब कैट जो है क्यों खुश हो गई? हमने पढ़ा था यहाँ पे sprang to the ground, the cat gave a yell, sprang to the ground, please as Punch to be safe and sound. क्यों? क्योंकि वो सेफली नीचे उतर गई थी, है ना। कैट वॉज प्लीज बिकॉज इट वॉज सेफ एंड सेफ ऑन द ग्राउंड, अब वो उतर गई तो सेफ थी, इसलिए वो खुश हो गई, राइट। वेयर डिड डैड लैंड, अब डैड उसके पिताजी जो है कहाँ रह गए, मतलब कहाँ कूद के चढ़े, है ना। डैड लैंडेड अपन द कैट, अब डैड जो है जैसे ही उन्होंने छलांग लगाई तो वो के ऊपर ही कूद गए, राइट। Find the word from the stanza which means the same as contented. Contented means मतलब satisfied, है ना। तो satisfied, contented means smug. मैंने बताया था smug का मीनिंग क्या होता है, satisfied, right, quite satisfied. Contented भी कह सकते हैं, है ना। So now we have completed this poem. Thank you.